Everybody, welcome to the ESI video series from our RBI Grade B Foundation course. In this lecture, we will first go through the ESI exam pattern. After that, we will see the ESI syllabus. Then we will move to the questions asked in 2023 and 2024 exam. In the end, we will show you how we have divided the entire ESI syllabus into various chapters. But before we start, let me show you the three variants of our RBI Grade B course. The first one is the foundation course. You can see the features here that we have covered the entire phase 1 and phase 2 syllabus in a very comprehensive manner. Alright, so this is your exam pattern. You can see that for objective part, you will get 30 minutes. In this time frame, you will be given 10 1 markers. And 22 markers. Now these questions can be single one-liners or multiple statements based question. The next part, that is of 2 markers questions. Mostly these will be in the form of a passage, and on each passage you will be asked 4 or 5 questions. So this year they asked 4 questions on these passages. Alright, the number of questions on each passage may vary, so sometimes you will be given 2 or 3 or even 5. Okay, so overall these 10 1 markers and 22 markers combined is of 50 marks. In the next part, you will be given descriptive questions. So overall there will be 6 questions. So if I number them, 1 2 3 4 5 and 6. Okay, so the first 3 questions will be of 15 marks each, and the last 3 10 marks. Usually they require you to write around 600 words for each 15 marker question. And for 10 markers, you have to write around 400 words for each question. The first and the fourth question, these are compulsory. That means you have to compulsorily write first and fourth question. And out of second and third, you have the option to write any one of these. Likewise, out of the fifth and sixth question, you have to write one. So overall, if you see, you have to write 4 questions. So first and fourth compulsory, then any 2 of second and third, and fifth and sixth, right? So this way, 15 into 2, that is 30, and 10 into 2, that is 20. So overall, the descriptive part is of 50 marks, just like objective part. Okay, now we will see the syllabus. So on your screen, we have divided the entire ESI syllabus into 4 broad parts. The first one is growth and development. So if you notice, this year they asked to highlight the difference between sustainable development and economic growth. And if you watch our first lecture, so in that very lecture we have described how growth is different from development, or how growth leads to the path of development. So that means development is a broader term, right? So if you witness growth, that does not always lead to the path of development. So these are some differences in this topic that you will learn in the first lecture itself. Okay, so if you see all these syllabus, all these keywords, so you have to read and understand the static part of it. That is the first step to prepare ESI in a very comprehensive way. And also you have to keep in mind, each time something related to it comes in the news, you have to go through the factual part as well.
For example, you can see here it is written national income, right? So you must be having some understanding of how national income is computed. Now there are various ways, methods in which we compute national income. So that can be income method or expenditure method or outcome method. Apart from that, if national income or national account estimate comes, then you have to go through the quarterly or yearly data. So for example, each time economic survey is tabled in the parliament, or right after that there is union budget. So in these documents you will be given the provisional estimate of the ongoing fiscal year's national income. So you have to keep in mind such data sets, such data points rather, right? So you have to cover both static and current affairs oriented parts. Then we come to poverty alleviation and employment generation. Now, if you have prepared this year, you must have read about PLFS survey, okay? Periodic Labor Force Survey. Through such surveys, you have to keep an eye on, the current data points concerning employment. Or a similar survey is, conducted by NSSO. So all these things you must keep in mind while preparing for RBI Grade B. Okay. In the poverty alleviation part, you must have heard of multi-dimensional poverty, right? So Niti Aayog compiles, a kind of survey or conducts a survey in which they give data about MDP in India. So that could be, decadal data. So ये सब आपको देखना रहेगा कि लास्ट डिकेड के कंपैरिजन में इस डिकेड में क्या इंप्रूवमेंट हुई है. तो इस पे आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है एंड यू कुड बी आस्क्ड अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एज वेल. बट बिफोर दैट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट पॉवर्टी इज, what is absolute poverty, what is relative poverty, what is multi-dimensional poverty. ठीक है, तो first try to develop a very sound understanding of all these terms. So if you have been asked to highlight the differences between absolute poverty and multi-dimensional poverty. So पहले आपको static part करना रहेगा. Only after that you can take care of the current affairs oriented data. Right. Then we come to sustainable development and environmental issues. So a few minutes ago, I told you about the difference between growth and development. So this is the building block of this topic. Right? So if somebody tells you about the GDP data, so that can come under economic growth because it is a quantitative term. It gives you a number, right? It is a part of economic growth. But if you combine growth with some other parameters, जैसे कि poverty हो गया या फिर लोगों के फूड बास्केट में क्या क्या है, क्या उनको सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल पा रहा है, लाइकवाइज जो हमारे यहाँ एजुकेशन का लेवल है वो इम्प्रूव हुआ है या नहीं. क्योंकि अगर ग्रोथ के साथ ये सारी चीज़ें, अभी मैंने जितने भी आपको पैरामीटर्स बोले हैं, वो चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, अगर इनमें इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो वी कैन से दैट देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ बट नॉट डेवलपमेंट. ये की डिफरेंस है. तो ये सब आपको समझना रहेगा, तभी आप एक आंसर लिख पाओगे अच्छे से. और ऑब्जेक्टिव में वो आपसे मोस्टली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड चीज़ें ही पूछते हैं, बट डिस्क्रिप्टिव में आपको स्टैटिक नॉलेज भी होनी जरूरी है, उसके बिना आप आंसर लिख नहीं पाओगे अच्छे से. तो चैप्टर्स रीड करते टाइम आपको ध्यान रखना है दैट जितने भी की टर्म्स हैं वो आपका बहुत अच्छे से पहले कवर हो. तो डेटा पॉइंट्स हैं वो आप बाद में ठीक कर सकते हो उसे, क्योंकि अगर हम ऐसा एज्यूम करें कि नेक्स्ट ईयर एग्जाम अराउंड जुलाई में होता है या अगस्त में होता है, तो आपके पास बहुत टाइम है अभी. तो आप पहले क्या करो, जो स्टैटिक आपके नोट्स हैं लाइक चैप्टर्स हैं, पहले उन पे फोकस करो अच्छे से, और इनको आप कोशिश करना कि अराउंड 2 या 2.5 महीने में ख़त्म हो जाए,
तब आप बहुत अच्छे से टाइम दे पाओगे न्यूज़पेपर पे, जो कि एक बहुत मैं इसको बोलूँगा कि शायद ये सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है आपके प्रिपरेशन का। कई बार ऐसा होता है कि जैसे इस बार भी मेरी बहुत सारे कैंडिडेट से बात हुई है, तो वो न्यूज़पेपर रीडिंग पे इतना टाइम डिवोट नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि नोट्स के फॉर्म में सब कुछ मिल जाता है तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। बट आप जब कोई आर्टिकल पढ़ते हो या फिर कोई ऐसे ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल्स पढ़ते हैं जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओपेड्स, इनको रीड करने के बाद आपको एक नया डायमेंशन आपके दिमाग में आता है कि इस टॉपिक पे इस एंगल से भी सोचा जा सकता है। ये सब आपको नोट्स में नहीं मिलेगा। नोट्स में मोस्टली क्या होती हैं, स्टैटिक चीज़ें होती हैं कि वो आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पे एक्सप्लेन कर दे। बट जो चेंजिंग जो हमारे फैक्ट्स हैं या फिर जो डायनेमिक्स होता है किसी भी टॉपिक का, उसके बेसिस पे अगर कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल आ रही है तो वो आपको रीड करना ही पड़ेगा, उसका और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, राइट? ठीक है, लाइकवाइज हम बाकी सारे टॉपिक्स को भी ऐसे डाइसेक्ट कर सकते हैं कि कैसे कैसे उसे रीड करना है। ठीक है, अब इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में अगर आपने नोटिस किया हो तो बहुत पहले का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, अब क्या पता पूछ दे। तो इसके लिए हमने अपने चैप्टर में इसके ऊपर भी बात की है बहुत अच्छे से कि हम खास करके 47 के बाद कैसे कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, वो सारी चीज़ें कवर्ड है चैप्टर्स में। तो आपको थोड़ा सा पढ़ना रहेगा ये, जैसे कि आप ऐसे सर्च करना खुद से कि हम इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं। अब ये आपके चैप्टर में दिया है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, राइट, एग्जाम में, लेकिन क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है तो वो पूछ सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। आप एक आइडिया लेने के लिए भले पिछले 2 साल के 3 साल के क्वेश्चन को देख सकते हो, बट ये कभी भी एज्यूम मत करना कि फॉर्मेट वही रहने वाला है क्वेश्चन का, या फिर पैटर्न वही रहने वाला है, या फिर जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी फॉर्म में आपसे पूछे जाएंगे। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो रिस्क मत लेना। जितनी चीज़ें यहाँ पे दी हैं, एटलीस्ट जितने हमारे कीवर्ड्स यहाँ पे मेंशन्ड है, उनके बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, और वो आपको चैप्टर के थ्रू हो जाएगा, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे कुछ और टर्म्स देख सकते हो, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट। तो ये तो आपको ऐसे ही करना रहेगा, ये किसी भी रेगुलेटरी एग्जाम के लिए, वो चाहे नाबार्ड हो चाहे आरबीआई हो, और अब तो आईएफएससी वगैरह में भी बहुत अच्छे से पूछा जाने लगा है। तो ये टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने होते हैं, ठीक है। तो मैंने बस 2-3 एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताया है कि कैसे आपको स्टैटिक और करंट अफेयर्स ये दोनों साथ में लेके चलना है। कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी ऐसे ही होती है, आप किसी एक को छोड़ नहीं सकते। अगर आपने सपोज कि पीआईबी या फिर सर्कुलर्स के नोट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लिया, और अगर आपसे वो कुछ स्टैटिक पूछ लेते हैं, जैसे कि इस साल पूछा गया है जो मैंने आपको बताया कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, इसके बारे में उन्होंने पूछ लिया। तो अब ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि कोई इसमें रॉकेट साइंस इन्वॉल्व हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो। आप लिखने को लिख सकते हैं इस पर, लेकिन पॉइंट वाइज डिफरेंट पैरामीटर्स पे आप तभी लिख पाएंगे जब आपने चैप्टर को अच्छे से रीड किया हो, नहीं तो आपका आंसर थोड़ा इनकम्प्लीट सा दिखेगा और मार्क्स आपको पूरे नहीं मिल पाएंगे, राइट। ओके, अब आप यहां पे ध्यान दो, हमारा जो थर्ड इसमें पार्ट है दैट इज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें आप देखो कि ये तो बहुत ही ओब्वियस सा टॉपिक है कि आपको एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि किस किस ऑर्डर में चीज़ें हुई थी उस समय। अच्छा, उसके बाद आपको बीओपी का देखना है। तो बीओपी से रिलेटेड आरबीआई का डेटा टाइम टू टाइम आता रहता है, क्वार्टरली भी, और ऐसे भी आपको पता चलेगा, तो ये न्यूज़ के थ्रू कवर हो जाएगा। फिर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। अब इन्होंने सिलेबस में इस वे में लिखा है, बट अब हम इसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। The last version of it was released in 2023. So our ongoing foreign trade policy is effective since 1st April 2023. तो इसके बारे में आपको रीड करना है, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। तो कुछ ऐसा था कि डीम्ड एक्सपोर्ट के बारे में पूछा है उन्होंने। नाउ ये तो साल भर पहले का हो गया, राइट, बट ये आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। तो अभी की जो पॉलिसी है, जो पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है, उसके बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, बल्कि आप थोड़ा सा देख लो कि उस पार्टिकुलर पॉलिसी का फोकस एरिया क्या था, ठीक है। लेकिन अभी की जो पॉलिसी है वो आपको डिटेल में करना है। और ये ऐसे भी न्यूज़ में थी क्योंकि बजट में या बजट के बियॉन्ड भी 2 टॉपिक्स न्यूज़ में थे। एक तो था कि इंडिया का एस्कॉमेट पॉलिसी, उसके बारे में आर्टिकल आई थी पीआईबी में,
अभी महीने भर पहले या 2 महीने पहले, जो कि आपका एफटीपी से रिलेटेड है। एफटीपी में इसके ऊपर बात की गई है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करो जो कि आपके कोर्स में है, तो आप वहाँ पे देख पाओगे कि इसके ऊपर काफ़ी बात हुई है, और ये न्यूज़ में भी था अभी कि इसमें कुछ आइटम्स ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक था एफटीपी से रिलेटेड, दैट वाज डाक निर्यात केंद्र। डाक निर्यात केंद्र, ठीक है। सो दिस वन टॉक्स अबाउट इंक्लूडिंग द इंडिया पोस्ट ऑफिसेज एज अ की पिलर ऑफ आवर सप्लाई चेन इन एक्सपोर्टिंग वेरियस गुड्स एंड कमोडिटीज फ्रॉम हेयर। तो डाक निर्यात केंद्र उसके ऊपर बात करता है, और शायद इसी से रिलेटेड जो इस साल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है अबाउट डीम्ड एक्सपोर्ट, तो वो इसी से रिलेट करके पूछा है उन्होंने। तो जब भी कुछ ऐसा कोई भी स्टैटिक टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको अपडेट दिखे, तो आपको वो जाके वापस चैप्टर में रिवाइज करना है अच्छे से, और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होगी, जैसे कि एफटीपी आपके चैप्टर में भी है, और इसके लिए अलग से हमने नोट्स दे रखा है, तो आपको नोट्स में जाके वो देखना है, अच्छे से पढ़ना है उसको। ठीक है, फिर आप देखो यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हुए हैं। तो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है। अब जिनके नाम यहाँ पे बहुत ही कैटेगोरिक वे में इन्होंने लिखा है, उसके बारे में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। जब भी कुछ न्यूज़ में आए, जैसे कि जब आपका एग्ज़ाम होगा, हम नेक्स्ट ईयर में एंटर करेंगे 2025 में, तो फर्स्ट 3 to 4 मंथ्स में डब्ल्यूटीओ की मिनिस्टेरियल मीटिंग होती है। ये हर साल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको देखना रहेगा। इनफैक्ट 2023 में इसके ऊपर क्वेश्चन भी था। ओके, इसके अलावा आप देख सकते हो WEF को, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हालांकि ये यूएन एफिलिएटेड नहीं है, बट फिर भी इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि आप G20 का नाम सुनते होगे बार बार, और इंडिया ने इसको इस बार होस्ट भी किया था लास्ट ईयर। सो G20 का इंसेप्शन माना जाता है कि WEF के ही उसके एनुअल मीटिंग में हुआ था। ठीक है, जो डावोस में होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसके कुछ रिपोर्ट्स को फेज 2 के एग्जाम में पूछ लिया गया है। इनफैक्ट इसी साल एक पैसेज था जिसमें एक रिपोर्ट थी IMF की और दूसरी रिपोर्ट थी WEF की। उन दोनों को यूज़ करके उस पैसेज में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इनके कुछ भी रिपोर्ट्स हैं या फिर इंडाइसेस हैं, वो आपको देखना रहेगा। वर्ल्ड बैंक का हो, IMF का हो, WEF का हो, WTO का हो, या फिर अगर आप इकोनॉमी सेक्टर से निकल के अगर आप सोशल सेक्टर में देखो, तो WHO की रिपोर्ट आती है। ठीक है, या फिर UNDP की रिपोर्ट आती है। तो ये जितने UN एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो ये कि आप UN एफिलिएटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेजर वंस, जो कि जिसका कि लिंकेज आपके सिलेबस से है, उनका कोई भी रिपोर्ट हो वो आपको अच्छे से करना है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि बहुत सारे इंडाइसेस और भी होते हैं या फिर रिपोर्ट्स होते हैं, जैसे कि पासपोर्ट इंडेक्स है, ऐसे ऐसे करके बहुत कुछ निकलेगा। एक होता है फ्रीडम इंडेक्स। नाउ दीज रिपोर्ट्स और इंडाइसेस आर पब्लिश्ड बाय सम NGOs विच आर नॉट एफिलिएटेड टू द UN, यूनाइटेड नेशंस। उनको हम छोड़ सकते हैं, वो आपसे फेज 1 में पूछे जा सकते हैं। हालांकि उसमें भी पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है अब, लेकिन फेज 1 में फिर भी पूछे जा सकते हैं ये सब। बट पासपोर्ट इंडेक्स या फिर फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये सब पे क्वेश्चन आपसे फेज 2 में नहीं पूछा जाएगा। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि एक तो सबसे पहले इनका जो सैंपल है जिसपे कि ये रिसर्च करते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रेडिबल नहीं होता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बार बार हाईलाइट किया है कि हम इस रिपोर्ट को डिसमिस करते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज़ जिसको लेके गवर्नमेंट सीरियस नहीं है, आप मतलब ये मान के चलो कि उस पर आपको फेज 2 में क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला है। आप पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन उठा के देखो, जितने भी रिपोर्ट्स या फिर इंडाइसेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो UN एफिलिएटेड बॉडीज या फिर WEF इन्हीं के होते हैं। राइट, ठीक है। लास्ट पार्ट है इसका, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं और लास्ट में लिख दिया है सोशल जस्टिस। बट सोशल जस्टिस अपने आप में एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इसमें आपका सब कुछ आ जाएगा। इसमें हेल्थ आ जाएगा, इसमें एजुकेशन आ जाएगा, ठीक है, जो रिजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है, कि कैसे आप सोसाइटी में किसी डाउन ट्रॉडन
जो सेगमेंट है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए जो सरकार कर रही है, जैसे बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे आप न्यूज़ में सुनते होंगे श्रेयस स्कीम, तो ओबीसी या फिर एस सी एस टी कम्युनिटीज़ के लिए अगर कोई अलग से इनिशिएटिव आती है तो वो आपके सोशल जस्टिस का पार्ट होगा। या फिर जैसे मान लो ट्राइबल इशूज़ को लेके बहुत सारे स्कीम्स होते हैं या बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं अलग से, जिसको हम स्कीम नहीं बोल सकते बट वो इनिशिएटिव है, तो वो सब भी आपको करना है। ट्राइबल इशूज़ के साथ साथ जैसे मान लो कि पीडब्ल्यूडी, ठीक है, जिनको अब दिव्यांग बोलते हैं, अगर उनके लिए भी कोई इनिशिएटिव है तो वो भी आपको करना है। वो सब भी सोशल जस्टिस का पार्ट हो। तो लिखने के लिए भले सिर्फ यहाँ पे सोशल जस्टिस लिख के छोड़ दिया गया हो, लेकिन ये टॉपिक बहुत ब्रॉड है। तो किसी भी बैकवर्ड, डाउन ट्रॉडन, ठीक है, या फिर आप ऐसे अगर उसको बोलो तो हिस्टोरिकली इग्नोर्ड जो हमारे सेक्शंस हैं सोसाइटी के, अगर उनके लिए कोई अलग से स्कीम या इनिशिएटिव लेके आई गवर्नमेंट आई है तो आपको उसके बारे में रीड करना होगा। ठीक है, ओके। अब अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखो तो सिलेबस के जस्ट बाद यहाँ पे कुछ रेफरेंस मटेरियल्स का नाम लिखा होता है। तो ये सब बुक्स आपको रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका क्रक्स या फिर ये बोल लो कि यहाँ के जो यूजफुल यहाँ से कंटेंट है वो ऑलरेडी आपके चैप्टर का पार्ट बन चुका है। ठीक है, फिर आता है प्रोमिनेंट फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स। अब देखो न्यूज़पेपर को अलग से इन्होंने हाईलाइट कर रखा है कि ये भी आपको रेफर करना है। वो आप चाहो तो मिंट करो या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि एवरी डे वी सेंड यू अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो कि उस दिन के न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स की होंगी, जो वहाँ पे इंपॉर्टेंट वंस होते हैं। ऐसा नहीं कि जितने आपको रीड करने हैं वो सारा रहता है उसमें, बट एटलीस्ट जितने ओपिनियन वाले आर्टिकल्स हैं वो वहाँ पे रहेंगे अच्छे अच्छे। उसके अलावा आपको अपनी कवरेज वहीं तक लिमिट नहीं करनी है, आपको थोड़ा इंडस्ट्री रिलेटेड न्यूज़ को भी देखना है। कई बार क्या होता है जब आप आर्टिकल को रीड करोगे, और मैं इसके बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ, जो हमारा पीएम का स्टडी ग्रुप है अलग से, उनके वहाँ पे भी कर रखा है मैंने, और जो हमारा चैनल है उस पर भी मैंने आपको बहुत बार बता रखा है कि आपको आर्टिकल्स रीड करने हैं जो भी आपको लगे कि सिलेबस से थोड़ा सा मैच कर रहा हो, भले उसकी रेलेवेंस लॉन्ग टर्म नहीं हो। जैसे किसी कंपनी की मान लो क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, तो ये तो एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछने वाले हैं कि इस कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या था पिछले क्वार्टर में, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बट आपने नोटिस किया हो कि फिनांस के सिलेबस में आपका ये अकाउंट्स भी ऐड हो चुका है, और फिनेंशियल रिपोर्ट्स में एक पार्ट होता है, बैलेंस शीट भी होती है उसमें। ठीक है, अब होगा क्या कि उस आर्टिकल में, उस न्यूज़ आर्टिकल में दैट इज़ अबाउट द क्वार्टरली रिपोर्ट ऑफ अ पार्टिकुलर कंपनी, दे विल एक्सप्लेन द होल सिचुएशन थ्रू मे बी सम फिनेंशियल रेशियोज। तो आप एक बार देखो कि किस किस रेशियो के ऊपर बात हो रही है, वो रेशियो के नाम आप लिख लो अलग से। हालांकि वो आपके चैप्टर में भी है, बट आप न्यूज़पेपर के थ्रू भी ऐसे ऐसे अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। तो ये दोनों साइड से चलेगा, मतलब स्टैटिक के लिए आपको चैप्टर्स भी रीड करने हैं, और न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के थ्रू भी आपको थोड़ा थोड़ा नेट पे सर्च करके, क्योंकि जब आप रीड करते जाओगे चैप्टर्स को तो वो आपका 1 बाय 1 ऐसे भी कवर होता रहेगा। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के उन कीवर्ड्स को, जो रेशियोज़ के नाम है या फिर कोई ऐसे वहाँ पे फिनेंशियल टर्म है जिसके थ्रू ऑथर ने बोला हो कि हाँ इस कंपनी की परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर से बेटर हुई है या फिर वर्स हुई है, जो भी है, तो वो आपको किसी न किसी टर्म से समझाएंगे। ये सब टर्म्स भी आप अच्छे से देखो, इनको समझो। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो भले आपको सोच के लगे कि ये तो सिलेबस में चैप्टर में चैप्टर में होता है ये, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि ये तो पूरा स्टैटिक है। ज़रूरी नहीं है कि जो भी स्टैटिक लगे वो एक्चुअली में स्टैटिक है, वो न्यूज़ बेस्ड हो सकता है, लेकिन आपको रेफरेंस नहीं देंगे कि हाँ हमने इस आर्टिकल से उठाया। ठीक है, ओके। बट मैं ये बोलूँगा कि आप कोई एक न्यूज़पेपर फॉलो करना, वो चाहे मिंट हो चाहे बिजनेस स्टैंडर्ड हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक करो, दोनों अच्छे हैं बहुत। मैं पर्सनली रेफर करता हूँ मिंट को, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक आर्टिकल्स के साथ साथ सोशल इशूज़ पे बेस्ड जो आर्टिकल्स होते हैं उनकी कवरेज काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या होगा, दोनों का मिल जाएगा बहुत अच्छे से। ऑलराइट, जो यहाँ पे मैगजीन्स या फिर बुलेटिन्स के बारे में बात हुई है, तो उसमें आरबीआई की बुलेटिन जो आती है हर महीने, जब भी ऐसा लगता है कि बुलेटिन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं तो हम उसको समराइज़ करके अपने संपूर्ण फाइल में दे देते हैं। ठीक है, आप अगर उसमें देखो तो
पूरे संपूर्ण नोट्स को आप 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स. द सेकेंड वन gives you a very detailed coverage on ESI related articles. So for both economic issues and social issues. The third one is about agriculture and rural development. अब भले आपको लगे कि हाँ ये नाबार्ड के सिलेबस का पार्ट है, बट मैं अगेन थोड़ा सा बैक लेके आपको सिलेबस दिखाता हूँ फिर से. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, इंडियन एग्रीकल्चर, राइट. तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर आरबीआई के सिलेबस में है ही नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसे एग्री रिलेटेड स्कीम्स हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में. फेज 2 के एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं. इस साल भी उन्होंने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में पूछा है, जो कि एक्चुअली आप देखो तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है. तो अगर आप इकोनॉमी को देखो अगर, तो प्राइमरी सेक्टर का बहुत बड़ा पार्ट वो एग्रीकल्चर भी है, तो आप इसको छोड़ नहीं सकते. हाँ, डिफरेंस यहाँ पे आता है कि आपको एकदम डिटेल में ये लाइक क्रॉप्स के बारे में डिटेल में स्टडी नहीं करनी, वो फिर नाबार्ड का हो गया. नाबार्ड में आपको ये सब करना है. तो अगर आप दोनों एग्जाम दे रहे हैं तब तो आपको ये बहुत अच्छे से करना है कवर. अगर कोई सिर्फ नाबार्ड का दे रहा हो तो उस केस में क्या है कि आप क्रॉप रिलेटेड जितने न्यूज़ होते हैं उसकी आप वैरायटी देख सकते हो, क्लाइमेटिक उसकी कंडीशंस देख सकते हो, बट आरबीआई के लिए इतना रिक्वायर्ड नहीं होता. ठीक है, ओके. अब आप यहाँ देखो कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया है. वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि वर्ल्ड बैंक निकालती है. अब इस रिपोर्ट के बारे में 2023 में और 2024 में दोनों साल क्वेश्चन आया है इससे. और वैसे भी अगर आप सोच के देखो तो अगर रेफरेंस जो इन्होंने सजेस्ट कर रखा है ऑलरेडी, अगर उसमें किसी रिपोर्ट का या किसी इंडेक्स का नाम है तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि आपने इसको डिटेल में ही कवर किया होगा, तो आप इसको किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते. और अगर आपका एग्जाम जुलाई अगस्त में होता है तो उस टाइम तक ये रिपोर्ट आ जाती है, जो कि हमने भी दिया था इस बार. और हमने तो बल्कि फेज 2 के मॉक में इस रिपोर्ट के ऊपर पूरा पैसेज बना रखा था एक. तो जिन्होंने भी मॉक्स लगाए होंगे अच्छे से, तो वो काफ़ी हद तक ये सारे क्वेश्चन उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा. ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी आपके नोट्स का पार्ट रहेगा. ये तो बल्कि हम काफ़ी डिटेल में देते हैं, इकोनॉमिक सर्वे हो या फिर बजट हो, ये बहुत डिटेल में कवर होता है हमारे यहाँ. तो अगर आपने मान लो इस साल कोर्स लिया था तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आती है, और उसको आपको जैसे ही वो रिलीज़ होती है, पब्लिश होती है, और हम अपने साइट पे अपलोड करते हैं नोट्स को, तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप उसको सोचो कि 2 दिन में सारा आप कवर कर लो. पीआईबी पे इसकी समरी आती है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, उससे आप थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर पाओगे. लेकिन अगर आपको उसके ऊपर लिखने को आ गया तो पीआईबी की जो नोट्स है उससे आप लिख नहीं पाओगे. उसके लिए आपको ओरिजिनल या तो आप फाइल पढ़ लो खुद से बजट की और इसकी सर्वे की, जो कि मुझे लगता है बेस्ट वे वही है कि आप इसको खुद से कवर करो. लेकिन अब सर्वे क्योंकि बहुत, हम इसको बोल सकते हैं कि इसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लाइक बहुत बल्कि डॉक्यूमेंट है, तो आपके लिए मुश्किल होगी उसको पूरा कवर करके और फिर उसको रिवाइज करने में. तो ये दिक्कत ना हो इसके लिए हम भी नोट्स दे देंगे. फिर भी आप कोशिश करना कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको एक बार खुद से पढ़ो, क्योंकि आपने अगर खुद से रीड कर लिया तो उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट को रेफर करने में आपको काफ़ी आसानी होगी और आप बहुत अच्छे से रिवाइज भी कर पाओगे उसको. फिर है आरबीआई एनुअल रिपोर्ट, ये भी हमने दे रखा था आपको और इस बार भी देंगे. रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया. अब ना ये सब टॉपिक में कुछ इशूज़ हैं, जैसे मान लो कि ये रिपोर्ट आई थिंक दिसंबर के आसपास आती है. ठीक है, तो अभी तो एग्ज़ाम हो चुका और आपका एग्ज़ाम जब होगा तो वो जुलाई में हो सकता है या अगस्त में हो सकता है, डिपेंड करेगा कि एग्ज़ाम कब हो रहा है. अगर एग्ज़ाम 6 महीने के बीच में होता है इस रिपोर्ट के पब्लिश होने से लेके 6 महीने के बीच में, तब हम इसको अच्छे से कवर करके आपको दे देंगे. ठीक है, नहीं तो फिर ये आपको शॉर्ट में कवर करना है. अब होता क्या है कि आप इसका नाम देखो क्या है, रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया. ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें आरबीआई अपने एनुअल रिपोर्ट में भी डालती है और एनुअल रिपोर्ट आपको जुलाई के अराउंड वो दे देते हैं. तो अगर जुलाई में आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आ जाती है तो इस वाले रिपोर्ट में बहुत सारा डेटा पॉइंट ऐसा होगा जो अब रिलेवेंट नहीं होगा. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये आपको बहुत सिलेक्टिव वे में करना है, वो भी तब जब एग्ज़ाम और इस रिपोर्ट के पब्लिश होने के बीच में गैप बहुत कम हो, तभी आपको करना है. रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनांस, ये आपको करना है अच्छे से. तो ये जब भी आता है और ये आपके एग्ज़ाम से मान के चलो 4-5 महीने के भीतर आ जाएगा,
तो ये आपको डिटेल में कवर करना रहेगा, हम भी इसको दे देंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, और यहीं से क्वेश्चन उठाया था इस बार के पैसेज का, और ऐसे भी आता रहता है, ये इसके ऊपर पूछते रहते हैं आपसे। ठीक है, तो मतलब जो हमने यहाँ से लर्निंग्स ली, दैट इज इफ देयर इज एनी यूएन एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन, so you must go through all such reports and indices published by them. Apart from the UN affiliated organizations, आपको WEF, कभी कभी अगर आपने नोटिस किया हो तो OECD, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इनके भी कुछ कुछ रिपोर्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, बट ये आपको तभी कवर करना है जब ये एग्जाम से कुछ महीने पहले आए हो, लाइक 2 महीने 3 महीने 4 महीने ऐसे, वरना आप इसको छोड़ सकते हो। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो अभी जो हम देखेंगे क्वेश्चन, दैट इज फ्रॉम 2023। अब मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ, आप उसको नोटिस करना कि वो क्या है। ये 1 मार्कर्स है, ठीक है। तो आउट ऑफ कितने यहाँ पे 10 होने चाहिए, मैं एक बार देख लेता हूँ कि मैंने 10 टॉपिक्स को यहाँ पे इंक्लूड किया था कि नहीं। 3 ठीक है, 10 है। 9 आउट ऑफ 10 जो यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं या फिर क्वेश्चंस हैं, आर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स। इसको आप नोटिस करना, ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। तो आप थोड़ा रियलाइज करो इसको कि गवर्नमेंट स्कीम्स की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है। आपने ESI में सारे के सारे चैप्टर्स मान लो रीड कर लिए, बट अगर आपने स्कीम्स अच्छे से रीड नहीं किया है तो क्या आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे? तो इसलिए स्कीम्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, और चैप्टर्स की जो लर्निंग है वो आपको यहाँ पे काम आएंगे। भले यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है, बट वो स्टैटिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे 2023 के पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें उन्होंने LPG रिफॉर्म्स के बारे में पूछा था। अब ये अब न्यूज़ में तो नहीं आती है, बट ये आपके चैप्टर का पार्ट है, तो आपको चैप्टर्स करने हैं सो दैट आप वो स्टैटिक वाले क्वेश्चन मिस ना करो। एंड बिकॉज 2023 में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो आपने चैप्टर्स पढ़ के मान लो कि किया होता, या फिर चैप्टर पढ़ के आप कर पाते हो उसको। अभी हम डिस्क्रिप्टिव भी देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स थे, वो हम देखेंगे बाद में, बट अभी आप ये देख लो, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, मैं उसके लिए बता रहा हूं कि दिस इज बेस्ड ऑन, लार्जली बेस्ड ऑन जो आपका स्कीम्स या संपूर्णा में जितनी भी चीजें आती हैं, बेसिकली आप इसके बेसिस पे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, हर साल ऐसा होगा कि 1-2 क्वेश्चन वो कुछ ऐसा पूछेंगे दैट इज लाइक एन आउटलायर, वो आपको मिलेगा नहीं कहीं पे, या फिर मिलेगा भी तो किसी ऐसे सोर्स में जो हम उसको कवर नहीं करते होंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है, ठीक है। लकीली 2023 में सारे क्वेश्चन कवर्ड थे हमारे कोर्स में, ठीक है। सिर्फ एक क्वेश्चन है ये DG यात्रा, अब ये भी नोट्स में था, बट हम इसको गवर्नमेंट स्कीम नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये स्कीम नहीं है, ये बस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसके थ्रू जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है एयरपोर्ट्स पे, तो वो सिंप्लीफाई होता है काफ़ी। तो ये स्कीम नहीं है, ये एक इनिशिएटिव था, बट ये भी कवर्ड था। तो इसलिए मैंने बोला कि जितने स्टार मार्क्ड हैं यहाँ पे वो सारे डायरेक्टली गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, और ये कवर होते रहते हैं टाइम टू टाइम, हर महीने। अब हम अपने कोर्स में जब संपूर्ण फाइल देना स्टार्ट करेंगे तो ये जनवरी से होगा, या फिर हो सकता है फेब से हो। अगर आप हर महीने का बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं तो इस करेंट मंथ के कुछ स्कीम्स आपको नेक्स्ट मंथ भी न्यूज़ में मिलेंगे, और नेक्स्ट मंथ जो स्कीम्स न्यूज़ में आ रहे हैं उसमें से कुछ आपको मार्च में मिलेंगे। तो अगर आपने 3-4 मंथ्स का बहुत अच्छे से कवर कर लिया है, तो 4th and 5th मंथ ऑनवर्ड आपको ऐसा लगने लगेगा कि काफ़ी कुछ इसमें रिपीटेशन हो रहा है, मतलब वही स्कीम्स बार बार न्यूज़ में आ रहे हैं। बट जो अपडेट्स आती हैं जिसकी वजह से वो स्कीम न्यूज़ में है, आपको उन अपडेट्स पे ध्यान देना होता है अच्छे से कि इसमें क्या कोई चेंज हुआ है, क्योंकि उसका स्टैटिक पार्ट तो सेम रहने वाला है। बट जो अपडेट्स आती हैं, मान लो स्कीम में कोई नए फीचर्स ऐड किए गए, या उस स्कीम से रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज़ आई कि उस स्कीम ने कोई माइलस्टोन या बेंचमार्क कुछ ऐसा वहाँ पे अचीवमेंट हुई हो अगर, तो वो न्यूज़ में आती हैं, तो वो सब आपको देखना रहेगा। अब
मेरा पर्पस यहाँ पे था कि मैं समझा पाऊँ आपको कि स्कीम्स कितने इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, यहाँ अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो हम बात कर रहे थे ये IMF निकालती है, तो देखो ये इस पे एक पैसेज आया था। ठीक है, ओके अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे। तो RBI's रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फिनांस, इसके ऊपर उन्होंने पूछ लिया कि मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ये सब क्या है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस। तो ये अगेन वर्ल्ड बैंक का है जो हम बात कर रहे थे पहले। फिर है UNDP's न्यू स्ट्रैटेजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, हाउ कैन वी इंट्रोड्यूस इट इन इंडिया। तो अब UNDP की कोई रिपोर्ट आई थी और आप देखो तो जेंडर इक्वालिटी जो है वो आपके सोशल जस्टिस या फिर सोशल इश्यूज का पार्ट है। ठीक है, सोशल इश्यूज में भी जेंडर जस्टिस। ठीक है, फिर है स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड पॉवर्टी एलिवेशन। अब आप देखो तो जो सिलेबस में हमने कीवर्ड देखा था वहां पे था पहले पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जब कभी भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जितने जितने अपोजिशन के MPs होते हैं वो सिटिंग मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी अपने कंसर्न मिनिस्ट्री का हो। तो जैसे सपोज कि हम बात कर रहे हैं अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से पूछा जाएगा कि सरकार अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए क्या कर रही है। तो उस आर्टिकल में, क्योंकि जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के PIB हैंडल पे जो भी रिप्लाई पार्लियामेंट में दिया गया था वही रिप्लाई एज इट इज उस PIB के आर्टिकल में पब्लिश की जाती है। तो जब आपका कोर्स आगे बढ़ेगा या फिर अगर आपने इस साल का कोर्स लिया था तो आपने नोटिस किया होगा कि इस टाइप के टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर होते हैं संपूर्ण। वहां पे आपको एक लिस्ट दी जाती है कि जितने भी स्कीम्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या फिर टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन। सो ऑल सच स्कीम्स आर listed down in a single article in your Sampurna notes. So from there you can keep a track of all such schemes, वो आपको याद भी रहेंगी। And if suppose there is an article talking about the latest developments या फिर कोई डेटा पॉइंट टाइप का होगा जिसमें वो ये बात करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस एक्सटेंट तक पहुंच चुका है या फिर the unemployment rate has dropped to such and such level, ये सब फैक्ट्स आपको वहां से उठाने हैं और आपको अपने नोट्स में डालना है। बेटर ये रहेगा कि आप अपने नोट्स भी बनाओ साथ साथ में, और अगर हो सके तो सॉफ्ट कॉपी में, ताकि उसको चेंज करना इजी हो जाए। सपोज अगर आपने आज स्टार्ट किया है नोट्स बनाना, तो आज के फैक्ट्स कुछ और होंगे। 2 महीने बाद अगर कोई नई रिपोर्ट आती है गवर्नमेंट की या फिर किसी और की भी जो क्रेडिबल सोर्स है, तो उसका डेटा पॉइंट आपको वहां से पिक करके अपने नोट्स में उसको रिप्लेस करना रहेगा और ये काम चलता रहेगा एग्जाम तक। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो आप सब जानते होंगे कि इंडिया में कितने % ऐसे लोग हैं जो जिसको हम बोल सकते हैं ऐसा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में या फिर एग्री एंड अलाइड सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, वो वहाँ पे एम्प्लॉयड है। अब इसका बहुत पहले फिगर हुआ करता था 50 या 55% के आसपास। नाउ दिस हैज़ रिड्यूस टू 45%, जो कि इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में था। और इस पे मुझे लगता है कहीं नाबार्ड में, शायद नाबार्ड के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है इसके ऊपर। तो अगर आप ये सब फैक्ट्स को अपने नोट्स में इंक्लूड नहीं करते हैं तो आप एग्जाम में गलती करोगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने नोट्स को ऐसा डायनेमिक बनाओ कि वो लेटेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेंजेस कर पाओ। अगर आप सपोज की कॉपी पे लिख रहे हो नोटबुक में अपने, तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपको वहाँ पे काफ़ी सारे कट्स लगाने पड़ेंगे बार बार। तो इसलिए बेटर है कि आप सॉफ्ट कॉपी वो आप मैनेज करो। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम स्टैटिक भी बोल सकते हैं और इसको हम CA ओरिएंटेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एवरी मंथ और एवरी ऑल्टरनेट मंथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होनी है। तो जब भी ये मीटिंग होगी और आपके एग्जाम के साइकिल में तो ये बहुत बार होगी, तो ये हर बार ही न्यूज़ में रहेगा
और जब भी कोई चीज़ ऐसी न्यूज़ में आती है जो आपको नहीं पता उसके बारे में अच्छे से, तो वो आप देखेंगे और उसको आप ऐसे रीड करेंगे कि नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ रिवाइज करना रहे। हाँ, अगर कुछ डेटा पॉइंट वहाँ पे आता है नया तो आप उसको इंक्लूड कर लेना, बट स्टैटिक चीज़ें ऐसी कवर करो कि वो बहुत डिटेल में कवर हो और उसके बाद आपको फिर से कुछ ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े उसमें। और ये काम अभी हो सकता है बिकॉज अभी आप पे करंट अफेयर्स का लोड नहीं है उतना। तो अभी आप स्टैटिक चीज़ें करो अच्छे से, और न्यूज़पेपर में जो भी आप आर्टिकल्स रीड कर रहे हो उसको भी आप थोड़ा अभी क्योंकि टाइम है, जैसा मैंने बताया, ये बाद में नहीं हो सकता। एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले आप पे इतना लोड रहेगा कि आपको सारी चीज़ें रिवाइज करनी रहेंगी। आपको फिर फेज़ 1 के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी होगी। उस बीच में आप न्यूज़पेपर पे इतने अच्छे से ध्यान नहीं दे पाओगे। तो बेटर ये है कि अभी आप न्यूज़पेपर पे अच्छे से फोकस करो। फिर है चैलेंजेस फॉर स्टार्टअप्स इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़। अब ये भी न्यूज़ से लिया गया था क्योंकि इसके बारे में बार बार आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे कि अर्बनाइजेशन, ठीक है, माइग्रेशन, रूरल डिस्ट्रेस। अगर आपकी अगर हैबिट है न्यूज़पेपर रीड करने की तो आपने नोटिस किया होगा कि इन सब टॉपिक्स पे आपको हर महीने कोई ना कोई अच्छी आर्टिकल मिल जाएगी। ओके, अब हम आते हैं इस साल के क्वेश्चन पे। तो इसमें फर्स्ट था प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। सितंबर 2024 में ये 2 बार न्यूज़ में था। एक तो यूपी में लखनऊ में आई थिंक कोई बिल्डिंग वहाँ पे कोलैप्स हुई थी, तो उसके जो विक्टिम्स थे उसको पीएम नेशनल रिलीफ फंड से उसमें रिलीफ प्रोवाइड की गई थी, मॉनेटरी रिलीफ। तो इसलिए ये एक बार न्यूज़ में था। दूसरी बार कुछ स्टेट्स में जैसे कि गुजरात और कुछ साउदर्न स्टेट्स से वहाँ पे फ्लड सिचुएशन थी, फ्लड लाइक, तो वहाँ पे भी रिलीफ प्रोवाइड की गई थी इस फंड से। तो इसलिए ये न्यूज़ में था। सितंबर मंथ में 2 बार न्यूज़ में कवर हुआ है। फिर है नेशनल करियर सर्विस। ये भी आपका आई थिंक अगस्त या जुलाई में न्यूज़ में था। तो अगर मैं फिर से स्टार मार्क लगा के बताऊं तो पीएम प्रणाम ये स्कीम है, किसान मानधन योजना, वात्सल्य, स्टैंड अप इंडिया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, नेशनल रिलीफ फंड, जिसको भी आप मान लो कि ये काइंड ऑफ स्कीम की तरह है। नेशनल करियर सर्विस, अब ये प्लेटफॉर्म है एक्चुअली एक, तो आपके ऊपर है कि आप इसको स्कीम का पार्ट मानते हो या नहीं, बट मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ इसमें। तो 1 2 3 4 5 2 3 5 ठीक है, 6 है यहाँ पे। और टोटल क्वेश्चन जो मैंने इंक्लूड किए हैं वो एक्चुअली 8 है। तो आउट ऑफ 8 6 यहाँ पे आपको गवर्नमेंट स्कीम से मिल जाते हैं। दैट इज जस्ट टू री इन्फोर्स वॉट आई सेड इन दी प्रीवियस स्लाइड कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में फोकस जो है वो स्कीम पे बहुत ज़्यादा रहेगा, खासकर 1 मार्कर्स में। और इनफैक्ट जो ये हमारे 2 मार्कर्स हैं इसमें भी स्कीम पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो एक वहाँ पे पैसेज रहेगा और उस पर आपको 4 या 3 क्वेश्चंस रहेंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, अब है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि 2 ऐसे टॉपिक्स थे रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। द फर्स्ट वन वाज स्कॉमेट और उसके बाद डाक निर्यात केंद्र। तो ये पिछले कुछ वीक्स में न्यूज़ में थे, तो ऐसा एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से कुछ ना कुछ पूछ लेंगे। और क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट अगेन ये 2 टॉपिक्स की वजह से ये न्यूज़ में रहा एफटीपी। ठीक है, बाकी सारे न्यूज़ से ही हैं। तो अब हम देख लेते हैं 2 मार्कर्स। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, अगेन लास्ट ईयर इस पे डिस्क्रिप्टिव आया था, इस बार उन्होंने पैसेज पूछ लिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक एंड ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, अब ये जो होता है ये WEF पब्लिश करती है इसको, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को। और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आती है कहाँ से? तो IMF के पास से। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ये आपको पता है, करना ही है कवर। बजट भी आपको करना है अच्छे से, बट क्वेश्चन सर्वे पे था तो मैं इसको हटा देता हूं अभी। फिर है SDG रिपोर्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। अगर आप ध्यान दो तो जो हमारे सिलेबस में लिखा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हो सकता है एक रिपोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बल्कि उसको हम बोलते हैं HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये जब भी आएगी आपको डिटेल में करना रहेगा। लाइकवाइज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, ये इसको हम बोल सकते हैं SDG रिपोर्ट। नीति आयोग भी इसको पब्लिश करती है और ये UN की तरफ से भी आता है।
तो आपको दोनों करना है। फिर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। अगर मुझे याद है सही से तो दिस इज पब्लिश बाय WEF शायद, एक बार आप चेक कर लेना है इसको, बट ये भी न्यूज़ में था और हमने इसको कवर किया था काफ़ी अच्छे से। ठीक है, ये जहाँ तक मुझे याद है अगस्त या सितंबर में आप देखना, उसमें आपको मिल जाएगा। मैं इसको एक्चुअली भूल चुका हूँ कि किस मंथ में था ये, बट इतना याद है कि हमने नोट्स इस पर बनाए थे और उसको डाला था अपने कोर्स में। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये आपको फर्स्ट ESI के फर्स्ट लेक्चर में ही इसके बारे में आपको जानने को मिल जाएगा। फिर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्वेश्चन जिन लोगों ने कोर्स हमारा रेफर किया था या फिर अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी हो तो आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम से आई थिंक वन वीक पहले मैंने एक PIB की फैक्ट शीट शेयर की थी। उसमें सरकार का रिबटल आया था जिसमें कि लाइक बहुत सारे इंडस्ट्री के अगर उसको मैं ऐसे बोलें कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स जो बार बार ऐसे कंसर्न्स रेज करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत हाई हो गया, यूथ में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इस सिचुएशन को रिकॉग्नाइज करके सरकार ने एक अपना रिबटल पब्लिश किया था PIB में। उसमें उन्होंने बहुत ही, जिसको हम बोले तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में उन्होंने पॉइंट्स के थ्रू, फैक्ट्स के थ्रू उन्होंने बताया था कि जितनी ख़राब सिचुएशन दिखाई जा रही है बाहर, उतना एक्चुअली नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर्स पे इम्प्रूवमेंट भी हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऑप्टिमम जो लेवल होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट का यूथ में, वो उस लेवल तक हम अभी नहीं आए हैं, बट ईयर ऑन ईयर इसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो अगर किसी ने सिर्फ वो फैक्ट शीट देखी होती तो आराम से इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकता था, और मैंने ये बात वहाँ पे बोली भी थी। तो आप एक बार चैनल पे जाके देखना, बहुत सारे फैक्ट शीट आप वहाँ पे ढूंढ पाओगे। जो हमारा फाइल का सेक्शन है हमारे टेलीग्राम के चैनल पे, जो कि सबके लिए ओपन है, तो वहाँ पे आप जाके देखो फाइल सेक्शन में, वहाँ पे सारे की पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं ऑलरेडी, ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत ना हो और आपको खुद से लाइक नोट मेकिंग के लिए आपको पॉइंट्स ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो ऑलरेडी वो सब हाईलाइटेड है वहाँ पे। इस बार हम क्या करेंगे कि न्यूज़पेपर पे फोकस हमारा, मतलब हमने ये एज्यूम किया कि आप खुद से कर रहे होगे और हम आपको आर्टिकल्स हर रोज़ दिया करते थे। मैंने ग्रुप में बहुत बार बताया भी है कि हर आर्टिकल आपको कैसे कवर करना है, जो भी काम के आर्टिकल्स हैं। तो उसमें मैं वहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में बताता था कि आपको एग्जैक्टली कौन कौन से सब टॉपिक्स करने हैं फ्रॉम दिस गिवन टॉपिक। इस बार हम उसको थोड़ा और रिफाइंड वे में करेंगे। ठीक है, तो न्यूज़पेपर के नोट्स वो आपका जैन से या फिर फेब से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी उसमें टाइम है, अभी आप खुद से रीड करो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप हैबिट बनाओ न्यूज़पेपर को पढ़ने की, उसी के बाद बाकी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बजट से है, जो कि सीधे सीधे लिखा है, और ऐसे भी आपको पता है कि बजट एंड सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बिना तो ऐसे भी कुछ होता नहीं, ये आपको करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। जब भी किसी स्कीम के 5 ईयर्स होते हैं या फिर 10 ईयर्स होते हैं, तो आप समझ जाओ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो या तो ऑब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड पूछ लेंगे, और वही हुआ इस बार। डिजिटल इंडिया मिशन के बारे में पूछा उन्होंने। ठीक है, अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर में AI का। अगर AI को अगर अडॉप्ट किया जाए तो इसका क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप RBI ग्रेड B का एग्जाम दे रहे हो तो बैंकिंग सेक्टर, मनी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, या इवन कैपिटल मार्केट भी, क्योंकि कैपिटल मार्केट की भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि RBI के एम्बिट में आती हैं, या फिर RBI वहाँ पे कोई ना कोई स्टेक होल्डर होता ज़रूर है किसी न किसी कैपेसिटी में। ठीक है, तो अगर आप RBI ग्रेड B का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये ऐसे सेक्टर्स हैं, इसको आप अगर छोड़ भी दो, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे काम सेबी का होता है, बट फिर भी RBI भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। टाइम टू टाइम आपने देखा होगा कि सेबी की जब भी कोई रिपोर्ट आती है या फिर उनका कोई अगर मास्टर सर्कुलर टाइप का आ रहा है, वो उसमें RBI को कोट करते हैं कि RBI के गाइडेंस के बेसिस पे उन्होंने कुछ ऐसा चेंज किया है। ठीक है, बट ओवरऑल हम ये 3 सेक्टर की बात तो कर ही सकते हैं कि इसमें RBI रेगुलेटर है और यहाँ पे सेबी का रोल उतना नहीं है, मतलब है ही नहीं यहाँ पे। इन सेक्टर्स में अगर कोई ऑन गोइंग चेंज हो रही हो
इस सेक्टर में कोई भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही हो, वो आपको ऐसे भी कवर करना है आपके एग्जाम के लिए। अब अगर बैंकिंग सेक्टर में एआई के इंट्रोडक्शन से जो भी फ़ायदा नुकसान हो रहा हो वो आपको देखना है। लाइकवाइज मनी मार्केट में एआई क्या रोल प्ले कर सकता है, एआई या फिर ऑटोमेशन। लाइकवाइज फॉरेक्स मार्केट में इसका क्या रोल है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप नेट पे सर्च करो तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। हर आर्टिकल को आप बस एक बार थोड़ा सा देख लो अच्छे से, ताकि कुछ पॉइंट्स आप वहाँ से पिक कर सको। उतना काफ़ी होता है कोई भी आंसर लिखने के लिए। आपको यहाँ पे किसी भी आंसर में आपको पीएचडी नहीं करनी है, क्योंकि इतना स्कोप होता नहीं है। अब जो फर्स्ट यहाँ पे 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन का ऑर्डर मैं भूल रहा हूँ, आप एक बार देख लेना कि इसी ऑर्डर में था या नहीं, बट या तो 400 वर्ड्स में लिखना है या फिर 600 वर्ड्स में लिखना है। तो आप ये मान के चलो कि एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मतलब टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड आंसर नहीं लिखना। अगर आपके 3-4 पॉइंट्स अच्छे हुए तो उतना काफ़ी है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। बस आप इंट्रो, कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें सही करना वहाँ पे। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इसमें, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आपने इस साल का बजट डॉक्यूमेंट रीड किया हो तो एक तो जैसे देखो क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्टली बजट से है, और ये क्वेश्चन भी बजट से उठाया हुआ है। कैसे? क्योंकि इसमें अनाउंस किया गया था कि 12 न्यू कॉरिडोर्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे, और ऐसे भी ये न्यूज़ में था। तो हम बोल सकते हैं कि बजट में था, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपको इसके ऊपर पूरा पूछ लिया एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो ये तो था कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका सोर्स क्या है, इसको कैसे कवर करना है। तरीका वही सेम रहता है। कई बार क्या होगा कि आपसे रिपोर्ट्स, इंडाइसेस ज़्यादा पूछ लिए जाएंगे। दूसरे साल के एग्जाम में हो सकता है कि रिपोर्ट्स पे उतना फोकस ना हो, वो आपसे स्कीम्स के बारे में पूछ लेंगे या फिर ओवरऑल इकोनॉमी के किसी सेक्टर के बारे में पूछ लेंगे। तो ये जो वेटेज है अलग अलग चीज़ों का, ये मतलब एडजस्ट होता रहता है। आप ये मत सोचो कि जो वेटेज अभी था इस बार में तो एग्जैक्टली वही वेटेज रहेगा, ये हो सकता है चेंज हो। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते किसी भी क्वेश्चन को देख के कि ये सिलेबस से बाहर का है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिलेबस से बाहर का है। तो आपको चीज़ें वही फॉलो करनी है और बहुत अच्छे से फॉलो करनी है, तब जाके आप लास्ट में हर क्वेश्चन जो आपसे एक्सपेक्टेड है वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे वहाँ पे। ओके, अब हम एक बार देख लेते हैं चैप्टर के नेम्स। तो ईएसआई में टोटल 21 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपका इकोनॉमिक इशूज़ और सोशल इशूज़ दोनों इंक्लूडेड है। अगर आप यहाँ तक देखो और इसका फर्स्ट पार्ट, तो ये इकोनॉमिक इशूज़ का पार्ट है, और उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा सोशल इशूज़, बल्कि इसको भी आप इसी का पार्ट मानो, ठीक है। यहाँ से सोशल इशूज़ का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसमें जेंडर इशूज़, सोशल जस्टिस में हमने फिर सारा कुछ यहाँ पे इंक्लूड किया है, जैसे कि ओल्ड एज इशूज़ जो होते हैं, ठीक है, ट्राइबल इशूज़, ऐसे करके आपको बहुत सारे अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, सोशल सेक्टर्स, तो अलग अलग सोशल सेक्टर्स के इशूज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे चैप्टर्स में इन सारे इशूज़ के ऊपर आपको कुछ स्कीम्स की लिस्ट भी मिलेगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है, टू एड्रेस द इशूज़ अराइजिंग फ्रॉम ईच सच सेक्टर। लेकिन यहाँ से आपको वो सारे स्कीम्स या ऐसे आप बोल लो कि वो सारे इनिशिएटिव्स चैप्टर में डिटेल में नहीं करने हैं। आप बस एक बार देख लेना कि किसी भी इशू के बारे में जब हम बात कर रहे हों तो सरकार ने उसको एड्रेस करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, बस नाम वहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर में संपूर्ण फाइल में जैसे कि मान लो पीआईबी में जब कोई चीज़ न्यूज़ में आती है तो उसको वहाँ पे डिटेल में कवर किया जाता है। रीज़न बीइंग कि अगर हमने चैप्टर में वो सारे स्कीम्स डाल दिए तो कई बार क्या होगा कि अगर स्कीम के गाइडलाइंस में कोई चेंज होती है या फिर कोई नया अपडेट उस पर आता है तो चैप्टर को बार बार अपडेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसी के लिए हमने वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बहुत लिमिटेड वे में बताया है। किसी चैप्टर में आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, सिर्फ वहाँ पे लिस्ट होगी, ख़त्म। तो वो आपको अलग से कवर करना है और वो आपको संपूर्ण फाइल में मिल जाएगी। जैसे जैसे वो न्यूज़ में आते हैं वैसे वैसे वो वहाँ से कवर होता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हो कि आप बस ये देख लो कि किसी स्कीम का प्राइमरी पर्पस क्या है, बस उतना याद रखो, वहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। मैं अगेन चैप्टर की बात कर रहा हूँ। तो आपको स्टैटिक वे में कुछ पता होना चाहिए कि सरकार ने जैसे ओल्ड एज, जिसको कि हम बोल सकते हैं सिल्वर इकोनॉमी, अगर मान लो जो रिटायर्ड लोग हैं या फिर 60 ईयर्स के बाद भी अगर कोई
60-65 ईयर्स के बाद भी अगर कोई वर्क करता रहे प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, तो ऐसे लोगों का जो ग्रुप है जो मतलब इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको हम बोलते हैं सिल्वर इकोनॉमी। तो उनसे रिलेटेड क्या इशूज़ हैं, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या उन इशूज़ को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है? अगर लिया है तो वो आप बस उसका नेम नोट करके रखना और उसका प्राइमरी पर्पस नोट करके रखना। उस स्कीम के डिटेल में आपको नहीं जाना है जब तक आप चैप्टर रीड कर रहे हो तब तक। और जब संपूर्ण फाइल आपको मिलने लगेगी जनवरी या फिर फेब से, तब आप एक एक स्कीम जो उसमें है कवर्ड उसको आपको बहुत अच्छे से डिटेल में करना है। ठीक है, ये हमारे चैप्टर्स है, आप एक बार देख सकते हो सिलेबस से इसको कंपेयर करके। सिलेबस में जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में मिल जाएंगे। अब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि हमारा ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हो सकते हैं, तो एक तो हमने यहाँ पे उसको देखा कुछ बीओपी में, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो इस टॉपिक से रिलेटेड कवरेज कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक कि हम जितने हमारे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर एमडीबीज हैं, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स, लाइक वर्ल्ड बैंक हो गया, उसके बाद आईएमएफ है, तो उन सब की कवरेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जो जिनको हम ग्लोबल नहीं बोल सकते बट वो काफ़ी इंपॉर्टेंस कैरी करते हैं, जैसे कि ब्रिक्स, जैसे आरसीईपी। तो इन सब के बारे में आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा, दैट इज 16th रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पे आपको कवरेज सारी मिलेगी। हो सकता है कि आपको शुरू में ढूंढने में दिक्कत हो थोड़ी, बट बहुत ही लॉजिकल वे में टॉपिक्स को रखा गया है इन ईच चैप्टर। आप एक बार चैप्टर रीड करोगे जब, तो आपको समझ में आ जाएगा इंडेक्स को देख के कि कैसे कैसे ये डिज़ाइन हुआ है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी से। इसमें बहुत जिसको हम बोल सकते हैं माइन्यूट लेवल पे जाके, फंडामेंटल लेवल पे जाके हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड फिनांस। वहाँ से स्टार्ट किया सोचो। तो इकोनॉमिक्स, फिनांस, ये सब के बारे में रीड करते करते फिर उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी के कितने टाइप्स हो सकते हैं और इंडिया किस कैटेगरी में आता है। ये डिस्कस करके हम आ गए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, और इस पर एक पूरा चैप्टर डेडिकेटेड है। तो सोचो ये चैप्टर अगर कोई अच्छे से रीड करके जाए तो जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है, या फिर इसको कैसे हम लाइक इस पे जो इशूज़ होते रहते हैं, इस पे जो डिबेट चलती रहती है, तो उसकी क्या मीनिंग है और किन की बात सही है, क्या दोनों में बैलेंस करके चलना है, या हम ग्रोथ को हम ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं डेवलपमेंट से, या डेवलपमेंट को ज़्यादा देना होगा ग्रोथ से। तो इस टाइप के जो लॉजिक हैं, इस टाइप के जो की पॉइंट्स है, बेसिकली आपका जो भी आर्गुमेंट आएगा वो ये चैप्टर पढ़ के बहुत रिफाइंड वे में आएगा। फिर धीरे धीरे आपने जैसे देखा सिलेबस में, मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो भी एक कीवर्ड है सिलेबस में, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, तो उसके लिए हमने चैप्टर यहाँ पे आपको दे दिया। आप इसको रीड करना और बहुत ही उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंटरेस्टिंग वे में आपको एक एक करके, ठीक है, टाइमली मैनर में, जैसे जैसे इवेंट्स होते गए हैं हिस्ट्री में, वैसे वैसे आपको यहाँ पे बताया गया है। और हिस्ट्री से मतलब है मेरा, मैं 47 के पहले की बात नहीं कर रहा, 47 के बाद का जो कुछ हुआ है वो आपको देखना है बस। फिर है प्लानिंग, जिसमें कि 5 ईयर प्लान्स के बारे में, तो ये सब अच्छे से यहाँ पे डिस्कस्ड है। तो ये सारी जितने भी चैप्टर्स हैं वो सिलेबस के हर एक कीवर्ड को किसी न किसी फॉर्म में डिस्कस करते हैं, वो आपको देखना रहेगा। आप फर्स्ट चैप्टर, अगर आपने कोर्स नहीं लिया है अभी तक, तो फर्स्ट चैप्टर फ्रीली अवेलेबल है, ये आप देख सकते हो चैप्टर। उसके बाद उसके रिविजन नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल है, दोनों आप देख लेना कि कैसे वो चैप्टर रीड करके आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अगर आपको मान लो रिवाइज करना हो तो पूरा स्टडी नोट को रेफर करने के बजाय अगर आप रिवीजन नोट्स को भी रेफर कर रहे हो तो आपकी कवरेज वहाँ से हो जाती है। ठीक है, ऑलराइट। तो इस लेक्चर में मुझे इतना ही बताना था। आई होप कि जिन लोगों का ये फर्स्ट टाइम है, मतलब जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने वाले होंगे अब, तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। जो वेटरन्स हैं जिन्होंने 1 या 2 बार एग्ज़ाम दे रखा है, तो उनको वैसे भी बहुत कुछ पहले से पता होता है, बट आई थिंक इस लेक्चर के बाद उनको और ज़्यादा क्लैरिटी मिली होगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्ज़ाम में, कहाँ से आ रहे हैं, और इस साल के लिए
आप ये मत दिमाग में रख के चलना कि हाँ 2023 2024 में जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिन रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वही फिर से रिपीट होगा या उसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसा कुछ अभी दिमाग में मत लेके चलो आप, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा है। तो आप कोशिश करना कि आपका कॉम्प्रिहेंसिव वे में सब कुछ कवर हो। क्वेश्चन कहाँ से आता है किसी को नहीं पता रहता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स किसी ने सोचा ही नहीं होता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप तभी कर पाते हो जब आप थोड़े अवेयर रहो मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है, आर्टिकल्स जो आ रहे हैं न्यूज़पेपर में वो किस टाइप के आ रहे हैं, किन किन टॉपिक्स पे डिबेट हो रही है आजकल। तो जब तक आप थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में भी दिमाग में नहीं रखोगे, अगर रीड नहीं कर रहे हो, तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करना कि हर चीज़ को जितने भी एरियाज़ पे हमने बात की है आज, कि कैसे आपको चैप्टर्स कवर करने हैं, कैसे आपको पीआईबी के नोट्स जो कि हम संपूर्णा में देंगे आपको, वो आपको देखना है, न्यूज़पेपर कैसे फॉलो करना है। अब इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे सपोर्ट टीम के थ्रू हमसे बात कर सकते हो, या फिर जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, आप अगर वहाँ पे भी कोई मैसेज या क्वेरी छोड़ दो, अगर जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है, कि आप कैसे सिलेबस को कवर करने वाले हो या फिर चाह रहे हो, या उससे रिलेटेड कोई भी डाउट, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। हम लोग वहाँ पे आके आपके इश्यूज़ को वहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।